So this is the assignment class which will be delivered by students. So today Ramesh Anand will deliver his assignment on starter culture on bacteriophages and its role in starter culture or in dairy industry. So Ramesh, please start. So this all is the revision class because I have already covered this topic in my own class, and since this is the student assignment class, so student have to deliver their topic, and in this way every student will just memorize or just revise their topic which has been already discussed. So is the role of bacteriophage in dairy industry. Okay, fine, Ravis. You can start. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am, and good afternoon, class. Yes. तुम्हारा पीपीटी नहीं आ रहा? मैम शो हो रहा है मैम? नहीं हो रहा है. शेयर करो. ये तो अक्षय का पिक्चर आ रहा है. शेयर हो रहा है मैम. शेयर हो रहा है, अभी आ रहा है स्क्रीन पे. मैम आपको शो नहीं हो रहा है क्या मैम? रुक जाओ. अब हो रहा है. चलो. वो अक्षय का पिक्चर आ रहा था. चलो अब हो रहा है. Good afternoon, class, and good afternoon, ma'am. Today's my topic. My name is Ravish Anand, and today's my topic is role of bacteriophage in dairy industry. Bacteriophage is a highly hot specific and rotational of starter culture has to control the problems of extent. Calcium ion deficient medium for maintaining starter culture prevent phase attack and helps in phase absorption to host cell. Genetic manipulation to construct phase resistance strain. It's not phage, it is phage. Okay, it is phage. Okay ma'am, bacteriophage. ये है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर जिसमें कुछ इसके पार्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हेड, टेल, थर्डली न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड से बना होता है, सीथ होता है, फिर टेल फाइबर होता है, स्पाइक्स होता है और एक बेस प्लेट होता है. Classification of bacteriophage on the basis of presence of single or double strand of genetic material. The bacteriophages are categorized as under the ssDNA bacteriophage, the dsDNA phases, the ssRNA phases or dsRNA phases. It's phages. Yes, ma'am. Advantages of bacteriophage in dairy industry. First, bacteriophages have been postponed as biocontrol agent to eliminate pathogenic or spoilage bacteria in dairy product. It enhances the shelf life of dairy products. And third one is it can be used as a food preservative or for the disinfection for food contact surface. Disadvantage. इसका disadvantage क्या है? Phase also affect on lactic acid bacteria, which growth of spoilage and pathogenic microorganism or even total production loss. Second one is phase infection for dairy starter culture remains the main cause of fermentation failure in the dairy industry. Third one is phase outbreaks can lead to substantial economic losses due to manufacturing delay. Precaution measures to control phase attack. Use aseptic techniques for propagation and production of starter culture. Second one is ensure effective sterilization of equipment and utensil. Third one is ensure proper heat treatment of the milk. Thank you. इसको फिर से फर्स्ट स्लाइड से उसको मूव कराना रवीश.
सो अभी रवीश ने तो बता दिया, बट मैं थोड़ा सा इसको और रिवाइज करा दूं। ऑलरेडी ये टॉपिक हो चुका है। रवीश ने बताया कि दिस इज बैक्टीरियोफाजेज, एंड बैक्टीरियोफाज मींस द bacteria eater. Phage means eater and bacteria means bacteria. So those kind of microorganisms which can eat bacteria is known as the bacteriophage. And bacteriophage, what is the characteristic of a phage or a virus or a bacteriophage? This bacteriophage is totally parasitic in nature, and it depends only upon the host, and it's a host machinery, and there is many kind of phages. There may be some plant phage, there may be some bacteriophage, there may be some animal phage, depending upon the kind of host they specify. So in this bacteriophages is highly specific in nature, as it affects a specific bacterial cell, and this structure, and the structure is, you all know that it is divided into the head, and this head consists of nucleic acid, and this is tail, and this head and tail is connected together by the collar, and this head consists of nucleic acid and a protein coat. That protein coat is capsid, and this capsid is made up of capsomere. The smallest unit of capsid is capsomere. Okay, and this is the sheath, and this is the plate, this is the tail fiber, and the smaller one is the spike, and this is the basal plate. So this all together the bacteriophages is divided into head and tail. So next, so bacteriophage, जैसे इसने बताया कि bacteriophage are a highly specific, host specific, and rotation of starter culture help to control the problem to some extent, because this bacteriophage is a major problem of failure of any fermentation technology or failure of any starter culture. And if we made deficient of media for calcium, then this also affects that also can prevent the phage effect. And because this calcium ion help in phage absorption to the host cell, so we can make the medium calcium deficient, and in this way we can prevent the attack of phage. Now another mechanism to prevent this phage attack is genetic manipulation, and the genetic manipulation to construct phage resistant cell. So matlab we can manipulate the bacterial cell in such a way that it cannot attached by any phage. So next please. सो क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि जो बैक्टीरिया, एक फाज ही ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होता है, एनआरएनए भी होता है, बट एक पार्टिकुलर बैक्टीरियोफाज में, एक पार्टिकुलर वायरस में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। यही एक वायरस है जिसमें कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाया जाता है, एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाया जाता है। इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने अपने स्लाइड में दिया हुआ है, मैंने पीपीटी में दिया हुआ है, मैंने अपने रिकॉर्डिंग में दिया हुआ है, बट यहाँ पे इन्होंने रवीश ने इसको सिंपल सिंगल स्टैंडर्ड डबल SSDNA यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए में इसको डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट, सो देखो बैक्टीरियोफाज का एडवांटेज भी है हमारे डेयरी इंडस्ट्री में, बट मतलब कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस ये है कि हम लोग इसको एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि बायो कंट्रोल कैसे, ये जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट है वो बैक्टीरिया से अगर स्पॉइल हो रहा है तो हम इस बैक्टीरियोफाज को उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर वो बैक्टीरिया को किल कर देगा तो हमारा जो फूड पार्टिकल है या फूड मटेरियल है वो सेफ होगा। तो ये फर्स्ट वे है कि हम बैक्टीरियोफाज को एक बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में हम यूज कर सकते हैं टू एलिमिनेट पैथोजेनिक और स्पॉइलेज बैक्टीरिया इन द डेयरी प्रोडक्ट्स। अब अगर हमारा जो स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म अगर खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली द सेल्फ लाइफ ऑफ डेयरी प्रोडक्ट वो बढ़ जाएगा, और जब हमने उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा दी, दैट मीन्स कि दिस बैक्टीरियोफाज कैन एक्ट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव or for disinfection of the food contact surface. Next is,
डिसएडवांटेजेस तो है ही। ये जो है फाज जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पे। एंड दिस फाज इन्फेक्शन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ फेलियर ऑफ एनी स्टार्टर कल्चर। एंड जिस फाज के कारण, इस फाज आउटब्रेक के कारण बहुत बड़ा बड़ा डेयरी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाता है। सो इससे क्या होगा, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक लॉसेस होगा। सो नेक्स्ट, क्या क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। फर्स्ट तो हम लोग एसेप्टिक टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। कोई भी डेयरी इंडस्ट्री या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा सबसे पहला जो है वो एसेप्टिक टेक्निक्स यूज करना पड़ेगा। एंड जो भी है, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं या जो हमने जो वाटर यूज किया हुआ है, या सारे हर चीज़ का एक इफेक्टिव और प्रॉपर स्टरलाइजेशन जरूरी है। एंड अगर हम जो मिल्क का प्रॉपर ही ट्रीटमेंट देंगे, सो दीज आर द सर्टेन प्रिकॉशनरी मेजर टू कंट्रोल फाज अटैक्स। So I think this is all about the bacteriophage. Thank you very much, Rabish. Now Vandana, अपना स्लाइड हटा लो रवीश। वंदना को इनवाइट करते हैं फॉर द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। वंदना, यस मैम। तैयार है तुम्हारा पीपीटी? मैम तैयार है। चलो भेजे भी थे मैम इसके पहले आपको। अच्छा, तुम भेजी हो क्या मेल पे? हाँ मैम, बहुत मेल पे नहीं भेजे थे, व्हाट्सएप पे भेजे थे बहुत पहले। अच्छा हाँ, उस टाइम भेजी होगी। आज प्रेजेंट कर दो ना, फिर दोबारा भेज देना। मैम शेयर कीजिए ना आप। मेरे पास देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा वंदना, तुम्हारे पास नहीं है? तुम अच्छा हमको शेयर करने के लिए बोल रही हो? यस मैम। ओके, तुमको नहीं आ रहा है? तुम पता है क्या करोगी? क्या? मोबाइल है तुम्हारे पास? किस पे तुम कर रही हो? मोबाइल। तो मोबाइल पे ना उस पीपीटी को खोलो तुम, और तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा जो जो जहाँ तुम मीटिंग कर रही हो ना, वहाँ पे एक शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। हम तुमको कंट्रोल दे चुके हैं, जैसे अभी रवीश किया ना, बस शेयर स्क्रीन कर दो, आ जाएगा तुम्हारा। कोशिश करो। वैसे हम तुम्हारा देख रहे हैं पीपीटी। अगर स्टार्टर कल्चर असाइनमेंट मेल पे भेजती तब ना, ये व्हाट्सएप पे खुलेगा ही नहीं। तुम हमको नहीं तो मेल पे भेजो, अभी इमीडिएटली भेज सकती हो। मैं व्हाट्सएप पे भेज देते हैं अभी। मेल पे भेजेगी तब ना, व्हाट्सएप पे नहीं खुलता है ना ये। मैम खुल जाएगा। व्हाट्सएप पे मेरे तो नहीं खुल रहा है। अच्छा भेजो तो। व्हाट्सएप पे नहीं खुल रहा है ना, फिर व्हाट्सएप पे तो अल्टीमेटली हमको मेल पे ही भेजना पड़ेगा ना इसको स्क्रीन पे लाने के लिए। वंदना तुम सीधे मेरे मेल पे भेजो ना। ठीक है। सीधा मेल पे भेजो। शेयर कर सकते हो आराम से, थोड़ा कभी कोशिश करके देखना। भेजी? मैम कर रहे हैं, कर रहे हैं। दे रहा बेटा।
भेजी? सीधा तुम उसको मेल पे मेरे टाइप करके डाल दो ना, उसको ऐसे क्लिक करोगी ना तो शेयर का ऑप्शन आएगा, ऐसे दो, उसको सीधा मेल पे मेरे शेयर कर दो। गया? देख लेते हैं, मेल खुला ही हुआ है। अभी तो नहीं आया, रुको तुम्हारा है, देखने का कोशिश कर। तुम मेरे व्हाट्सएप पे एक बार और भेजो। नहीं आया मेरे पे अभी तक तो, तुम व्हाट्सएप पे भेजो, हम कर लेंगे। नहीं आया वंदना तुम्हारा मेल, व्हाट्सएप भेजो जल्दी। भेजी वंदना? चाह ही नहीं। नेटवर्क, एक मिनट try। तुम्हारा मेल भी नहीं आया। स्पैम में भी नहीं है। हुआ? मैम शेयर ही कर देखते हैं, ट्राई करके नहीं जा रहा। तुमको शेयर करना नहीं आ रहा है? ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, पता नहीं। कैसे, तुम देखो तुमको बताते हैं। ये जैसे ना मेरे में वो मीडिया ही लैकिंग है, जैसे ये ऐसे क्लिक करोगी ना तो यहाँ पे, यहाँ ऊपर पे मैम बस शेयर तो लिखा है, बस वहां से जा ही नहीं रहा, कुछ डॉक्यूमेंट्स में भी गड़बड़। तुम ऐसा करो, एक बार मोबाइल स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करो। हाँ डॉक्यूमेंट आता है ना, तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ। एक बार मोबाइल स्विच ऑफ करो। उसके बाद कुछ है ही नहीं, लगता है पता नहीं, डाउनलोड भी नहीं है, इसमें आ ही नहीं रहा है। तुम हमको व्हाट्सएप तो दो भेजो, व्हाट्सएप भी तो तुम नहीं भेज पा रही हो। उस दिन भेजे थे मैम, फिर से देखते हैं चाहिए, इसीलिए उस दिन तुम कैसे भेजी थी, तो वैसे ही आज भी भेज दो। लगता है इरेज हो गया ना गलती से, इसका मीडिया दिखा ही नहीं रहा है। देखो ये व्हाट्सएप, रवीश व्हाट्सएप से ही क्या था। रवीश तुम इसको हेल्प कर दो ना वंदना को, एक बार कैसे शेयर करते बता दो ना उसको। मैम हम शेयर करके स्क्रीन पे क्लिक किए थे तो हो गया था। वंदना हाँ मैम। सुन रही हो?
तुम जैसे इसको क्लिक करोगी ना तो तुम्हारा पहले ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो शेयर का ऑप्शन आता है ना, जैसे शेयर करोगी तो नीचे तुम्हारे ना ढेर सारा ऑप्शन कि ईमेल पे भेजना है कि जूम पे भेजना है, कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा। या तो तुम व्हाट्सएप पे भेजो, कुछ तो करो तुम। देखो ये बेकार का रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल।